what we have done? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो गया था। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर हो गया था ना? हाँ सर। As we know, any compound can exist in certain only in certain environment. For example, if we say in higher organism or in sensitive organism, some compounds may exist only in certain range, in an optimal range. Before or lower, it will, if it is the lower environment, it means it is lower temperature, it will inactivate. If it is higher temperature, then it may degenerate. कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड है वो एक अपने एक प्रॉपर रेंज में, एक नैरो रेंज में, एक फिक्स रेंज में वो अपना एक्टिविटी, अपना मैक्सिमम एक्टिविटी दिखा सकता है। इतना आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ Hello? सर आ रहा है। हाँ सर। Basically, in last class we have done primary structure, secondary structure, tertiary structure and quaternary structure. और quaternary structure का we have done hemoglobin. Clear है? It has two subunits, 2 alpha and 2 beta units. याद है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर याद So है। basically, today we will deal with denaturation of protein, and then what are the components of protein, where we use these protein. As we know, we use proteins as a hormone, as an enzyme, these kind of things which we use. Clear है क्या? हाँ सर। So if the temperature, if we increase the temperature, if we change the pH, it may change the properties of protein. If we lower the temperature, then the protein may deactivate temporarily. If we increase the temperature above their limit, then it may degenerate and it will not again usable. समझ में आ रहा है क्या? मतलब कि ये कि हम लोग कभी अगर जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव एग, if we boil the egg, they have their limit of temperature in which they exist, they do the function, then it will degenerate if you boil it, if you heat it. If we freeze it, then it may deactivate for some time temporarily, but whenever the normal condition comes, it may behaves as normal protein. Clear hai? So change in temperature or pH, it may leads through lose of function structure of protein. समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? सर ये वापस समझाएंगे आप? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रोटीन अपने पास एग्जिस्ट करती है, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, क्वाटरनरी हो, प्राइमरी की खास बात अलग है, उसके ऊपर हम अलग से डिटेल बात करेंगे, लेकिन सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो और क्वाटरनरी प्रोटीन हो, अगर टेम्परेचर बढ़े, जैसे आप भी एक फिक्स रेंज पे रहना पसंद करोगे, either it is not too much low, not too much high, it may be 45 or it may be maximum 50. 45 too much to live as a human in any environment, and below it is 25, 20, 15. Clear है क्या? Below the it will be discomfort, it you are unable to live there, live at that environment. समझ में आ रहा है क्या? So जो बेसिकली प्रोटीन होती है वो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म का मैक्सिमम कंपोनेंट होती है, और ईच एंड एवरी पार्ट में प्रोटीन्स का एग्जिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से अपना प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाता है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो प्रोटीन के जो उसके जो अपने पास पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं ना, पेप्टाइड्स बॉन्ड्स, इट विल ब्रेक डाउन. If the peptide bonds break down, then the properties of protein will not be exist. Whatever the function, it will not exist. Clear है क्या? Its structure will degenerate. Yes. If we increase the temperature, if we increase the pH, it will degenerate the functional structure of protein and it will not act as previous one. पहले की तरह काम नहीं करेगा. अगर इसको हम लोग टेम्परेचर को लोअर कर दें, पीएच को लो कर दें, ये काम करना तो बंद कर सकता है, लेकिन whenever the favorable condition comes or the normal condition comes, normal environment comes, they will again activate. जो खास बात क्या है, अगर टेम्परेचर को लो करेंगे तो it will inactivate for some time, temporarily it will inactivate,
but when we increase the temperature of pH, it may leads to degeneration or it may loss of protein, structural function of protein. समझ में आ रहा है क्या? So during denaturation, the secondary structure and tertiary structure and quaternary structure of protein is destroyed. लेकिन क्या होता है? Primary structure is very simple protein. It is not destroyed since their peptide bonds are not broken. समझ में आ रहा है क्या? जो ऑलरेडी सिंपल है उसको वो क्या तोड़ेगा? उसको वो क्या डिजेनरेट करेगा? जो कॉम्प्लेक्स है, जो बड़ा है, तो वही टूटेगा ना? समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। इतना सबको क्लियर है? हाँ सर। इतना चल लिखने सर। दो, 1 मिनट। लिख लो। सर आपने लो टेम्परेचर क्या बताया? इट विल इनएक्टिवेट अपना फंक्शन का कुछ टाइम के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर। टेम्पोरली काम करना बंद कर देगा। कोलेजन, क्वाटरनरी प्रोटीन होता है। Quaternary structure is the most stable. Clear है? So next we have types of protein. On the basis of their structure and on the basis of their combination, we have different types of protein. First one is simple. Simple proteins are made up of only amino acids. सिर्फ और सिर्फ एमिनो एसिड से बना हुआ प्रोटीन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल प्रोटीन बोलते हैं। वी हैव नेक्स्ट कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होगा? इसमें कंजुगेशन होगा, प्रोटीन होंगे और इसके कुछ डिराइव्ड पार्ट भी होंगे, लाइक नॉन प्रोटीन पार्ट भी होगा। क्लियर है? और वी हैव नेक्स्ट द डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन क्या है? जो दूसरे प्रोटीन से टूट करके जो नया प्रोटीन बनता है, दैट वी कॉल एज डिराइव्ड प्रोटीन। क्लियर है? So currently we are dealing with simple protein. Simple protein are those protein which have only amino acids. It has no any non-protein part. It means इनके पास कोई non-protein part नहीं होगा, लेकिन compound protein में non-protein part होगा। इसका डिटेल से आप लोग हायर क्लास में कॉलेज में आपको मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल आपको कितना जानना है कि we have simple protein, we have compound protein, we have derived protein. क्योंकि मैं सारा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको सिंपल और कंपाउंड और डिराइव का टर्म नहीं मिलेगा, लेकिन इनके जो प्रोटीन्स हैं ये आपको हर जगह हर चैप्टर में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। समझ रहे हो क्या? वी हैव रूबिस्को, वी हैव कोलेजन, वी हैव एल्बुमिन, वी हैव ग्लोबिन, वी हैव हिस्टोन प्रोटीन। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। So the protein made up of only amino acids, they are known as simple, and these proteins may be fibrous or globular. Means it may be in the form of fiber or in the form of globule. क्लियर है? छोटे छोटे से ग्लोब्यूल बना करके ये अपना प्रोटीन बनाएगा, तो दे आर नोन एज ग्लोब्यूलर। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ वी आर डीलिंग विद फाइब्रस। Fibrous protein are long, it will be coiled and it is thread-like. The property of the fibrous protein are long, it will be the long structure in the form of coiled and thread-like structure. मतलब thread-like structure which is in coiled form, they are known as fibrous protein. For example, we have collagen protein. क्लियर है? एंड कोलाजन प्रोटीन इज फाइब्रस प्रोटीन। मैं इसके रिगार्डिंग एक सवाल आगे पूछने वाला हूं आप लोगों से, क्या आप लोग इसको ध्यान में रखते हो या नहीं रखते हो कि कोलाजन प्रोटीन कैसा है? क्लियर है? मैं आगे पूछने वाला हूं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल वर्ल्ड, as we have read earlier in first or second lecture, the most abundant protein in the animal world is collagen,
and in whole earth or in plant world, that is the, बोलो, Robusco. हाँ, Robisco. Basically it is capital O. Carboxylase oxygenase. It is CO, not cobalt, it is So, CNO. carboxylase oxygen. Next we have, first one is collagen, next is elastin. Elastin is a fibrous protein which are present in the connective tissue. It means whenever the bones connected to each other, when two bones connected, when the joints are formed, the soft part of that joints are formed from elastin. These are the connective tissue, which it means which it connects the different kinds of tissue. For example, it connects two bones and forms a joint. Before that, collagen is a protein. It has 20 to 25 to 35% of the animal body. क्लियर है? इसका परसेंटेज कितना होता है एनिमल बॉडी में? 25 to 35%. क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव क्रिएटिन. नेक्स्ट क्या है? क्रिएटिन. क्रिएटिन इज अ प्रोटीन, fibrous protein. Wherever it is present, it will form that cell as a dead. For example, our cell and its function is to become that tissue or cell smooth. For example, we have hairs. Hairs are some kind of smooth cells, and they are dead cells. So wherever the keratin is present, it will round that cell and form a smoothing part. For example, our smooth skin or rough. Our skin is rough or smooth. Smooth. It is smooth due to the presence of keratin. It is a fibrous protein. It means it is made of only amino acids. Clear है? Keratin के बारे में हम लोग और जगह नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं. Clear है? Next we have globular protein. Next क्या है अपने पास? Hello? Globular protein. Globular protein में क्या होगा? It will form some minute globular structure. They are known as globular protein. समझ में आ रहा है क्या? These are not fibrous. ध्यान रहे. If I ask you the most abundant fibrous protein in the world, तो क्या होगा? Animal world में collagen. नहीं, मैं डायरेक्ट वर्ल्ड बोल रहा, एनिमल वर्ल्ड नहीं बोल रहा. मैंने बोला कि the most abundant fibrous protein in the world. Collagen. कोलेजन. मैं क्यों? क्योंकि मैंने फाइब्रस बोला है. अगर मैं बोलता ग्लोब्यूलर तो क्या होता? Robusco. रूबिस्को होता. ठीक है. इन ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फरहान आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. हाँ बेटा, मैं जो पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ, एक ईच एंड एवरी पॉइंट इज अ क्वेश्चन इन द नीट. ये ध्यान रहे. क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव इन ग्लोबुलर प्रोटीन वी हैव रूबिस्को, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज. इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ. क्लियर है? एंड इट इज द इन द फॉर्म ऑफ globules. That's why we call it as globular structure. And it is present in the chloroplast. And as we know, it is present in the plants, and every green plants has chloroplast. That's why it has most abundant protein. समझ में आ रहा है क्या? अब देखो प्लांट में कितने सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे. That's why they are most abundant. Here it is T is missing. समझ में आ रहा है क्या? Most abundant protein on earth. For next we have globular protein is albumin, which is present in the egg. Clear है? In the form of globules. Next we have globin, that is present in the hemoglobin. That's why we use hem means red pigment, and globin is the protein. Clear है? Next we have histone protein. Histone protein we have read this point earlier as in the packaging of DNA. DNA is a package. The DNA structure, the double helix structure, is round around a spherical structure around a sphere with a protein that we call as histone protein. It means we have two types of protein on the basis whenever the binding of DNA will occur. We have histone protein, we have non-histone protein. हाँ, तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इनका डिटेल से इसका यूज कैसे होता है आप लोग जेनेटिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा. ठीक है ना? हाँ सर. इतना आप लोग जल्दी से लिख लो. इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? लिख के आप लोग समझ रहे थे या लिख रहे थे? दोनों साथ में. बेटा आपको समझ रहे थे सर. सर 1 मिनट लिखने को सर.
आप जो समझा रहे थे मैं वैसे वैसे पॉइंट्स लिखते जा रही हूँ। नेक्स्ट एक टॉपिक लिख लो आप लोग क्रिएटिन के बारे में। क्रिएटिन इज अ fibrous structural protein. It is fibrous structural protein and it is the non-living cells. It forms scales in animals. It form hairs. It form nails. It form horns. It form claws means panja, hooves, and outer layer of skin. All these are formed from the keratin. Basically, whenever the cells are forming, and some cells by the process of keratinization, it forms keratin and becomes non-living for the protection of the body. Clear hai? And to become the to form the smoothing part of the body, इनका function कैसा है? It smoothing down the cells that overlaps to form hair strands. That's why our hair are smooth. यह पता लगा है किसी के पास हेयर्स का कर्ली हेयर होते हैं तो ये वो अलग चीज होती है, ठीक है ना, वो भी कुछ क्रिएटिन की वजह से होती है। दैट्स व्हाई डिपेंड करेगा उसके हेयर क्यूटिकल्स कैसे हैं, उनके हेयर फॉलिकल्स कैसा है। ऑल दीज आर डिपेंडेंट ऑन द टाइप्स ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? बेसिकली इट ओवरलैप द लेयर ऑफ सेल्स एंड बिकम फंक्शन एज स्मूथिंग। क्लियर है? एंड दीज आर द डेड सेल्स। समझ में आ गया क्या आप लोगों को? हाँ सर। Next we have simple protein is completed till. Next we have compound protein. Compound protein को हम लोग क्या बोलते हैं? Conjugated protein भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Compound protein क्या बोलते हैं? Conjugated protein। इसी से बनेगा एंजाइम। क्लियर है? प्रोटीन बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन फॉर्म्स एंजाइम। वी कैन से ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन। उसको कौन क्या है, हम उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। एंड वी कैन से ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेसिकली हम लोगों ने जब प्रोटीन के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो प्रोटीन का काम क्या होता है हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था ना, तो ये एंजाइम के तौर पे भी काम करता है। तो सो वी कैन से ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन, दैट इज द राइबोजाइम। इसी बेस पे 2017 में 16 की नीट में एक सवाल पूछा गया था कि नेम द एंजाइम which is non-proteinous and that is formed from nucleic acid, that is the ribozyme। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। it is the compound protein, we also call it as conjugated protein। conjugated protein, conjugate इसका नाम इसलिए पड़ा है since it has two part, one is protein part, another is non-protein part, and protein part obviously made up of amino acids। clear है? protein part will obviously form from amino acids and non-protein part obviously from non-amino acid part। clear है? इस non-amino acid part, non-protein part को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक तरह का हेल्पिंग ग्रुप के तौर पे काम करता है एंजाइम्स के लिए ताकि ये प्रॉपर्ली काम कर सके। क्लियर है? यहाँ पर ये पीजी फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना। पीजी के यहाँ पर आपको पूरा फुल फॉर्म लिखना है क्योंकि मुझे आगे मुझे पीजी मैं लिखता हूं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पीजी फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप। पीजी यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, ध्यान रखना। आपको कहीं पे भी शॉर्ट नहीं लिखना है, फुल फॉर्म ही लिखना है। जो यूनिवर्सल लेवल पे शॉर्ट है आपको वही लिखना है, अदरवाइज कोई और आपको शॉर्ट नहीं लिखना है, ध्यान रखना। हियर पीजी फॉर प्रोस्थेटिक ग्रुप, टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? मैंने क्या बोला? वी हैव सेकंड प्रोटीन दैट इज कंपाउंड प्रोटीन और वी आल्सो कॉल इट एज कंजुगेटेड प्रोटीन।
since it has conjugation of different protein, different parts. We have protein part, we have non-protein part. Non-protein part is called prosthetic group and it is non-amino acid part. समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? आ रहा है सर। हाँ, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियोप्रोटीन। क्लियर है? न्यूक्लियोप्रोटीन कहां पर प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम में। अपने पास डीएनए है, वी हैव आरएनए, वी हैव प्रोटीन, वी हैव राइबोसोम, दे हैव आरएनए एंड प्रोटीन। वायरस, ऑल दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्रोटीन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप यहां पर क्या होगा? न्यूक्लिक एसिड होगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? किसी को समझने में कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। सबको आ रहा है? हाँ समझा सर। आवाज में दम नहीं लग रहा आप लोगों को? ऐसा लगता है कि मतलब मजबूरी में समझ रहे हो, ऐसा समझा क्या? सर समझा। सबको आ रहा है क्या? बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर। आपसे जो मैं बोल रहा हूँ कंपाउंड प्रोटीन, ये खुद एक अपने आप में एक क्वेश्चन है कि कंपाउंड प्रोटीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। क्लियर है? दे हैव प्रोटीन पार्ट एंड प्रोटीन पार्ट इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। नॉन प्रोटीन पार्ट ऑब्वियसली नॉन प्रोटीन है तो इट विल बी फाउंड फ्रॉम नॉन प्रोटीन पार्ट। इट मे बी एनीथिंग वी विल स्टडी लेटर कि प्रोस्थेटिक ग्रुप होता क्या है और इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है? So on the basis of prosthetic group, we have different types of protein. If it is nucleic acid, then we will call it as nucleoprotein. If prosthetic group is nucleic acid, we will call it as nucleoprotein. For example, we have chromosome. We have chromosome. In chromosome, we have DNA, we have RNA and protein. If we talk about ribosome, it has RNA, replicative RNA. We have protein. क्लियर है? एंड वायरस आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम न्यूक्लियोप्रोटीन। इतना सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। पक्का? वैसे आप लोग जब कॉलेज में पहुंचोगे, आई होप कि सबके साथ कॉलेज में पहुंचेंगे, अच्छे कॉलेज में, तो वहां पे आपको जब एक सब्जेक्ट आपका होगा बायोकेमिस्ट्री, जो भी मेडिकल में एमबीबीएस वगैरह जो भी करेंगे आप लोग, एक वहां पे आपको फिर इन सब का डिटेल से पढ़वाया जाएगा। क्योंकि आप आई होप कि इन कमिंग टाइम यू ऑल बिकम्स डॉक्टर्स। तो जब किसी पेशेंट को आप चेक करोगे, तो अगर बाय द वे सम पेशेंट हैव डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो हाउ कैन यू से दैट कि which types of protein you have to take, या और which food ingredient you should take। समझा क्या? यस सर। जल्दी से लिखो। नेक्स्ट वी हैव क्रोमोप्रोटीन, इज अ टाइप ऑफ कंपाउंड प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन। बोलो यार। अभी हम लोग कंपाउंड के सब पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना। तो फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियोप्रोटीन, सेकंड वन इज क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में क्या होगा? इफ दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप ना? नहीं। क्या? हाँ, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज मेटल पोरीफायरिन रिंग। एक कॉम्प्लेक्स एक रिंग बनाता है डिफरेंट मेटल के साथ मिलकर के, पॉली मेंबर्ड रिंग। तो वी कॉल इट एज पोरीफायरिन रिंग। क्लियर है? तो विद द हेल्प ऑफ मेटल इट फॉर्म्स अ मेटल पोरीफायरिन कॉम्प्लेक्स, जिनके पास मेटल होंगे और एक पोरीफायरिन रिंग होगा। जिस तरह से हम लोगों ने नाइट्रोजनस बेस में पढ़ा था कि वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, पढ़ा था ना? उसी तरीके से वी हैव क्रोमोप्रोटीन। क्रोमो मींस कलर, ऐसा प्रोटीन विच गिव्स द कलर टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? एंड इट इज मेड अप ऑफ in this the prosthetic group is made up of metal and porphyrin ring। समझ में आया क्या आप लोगों को? हाँ सर, ये तो अर्थवॉर्म में पाया जाता है ना पोरीफायरिन? कहाँ पे पाया जाता है? अर्थवॉर्म में, जिससे उसको रेडिश ब्राउन कलर मिलता है। अच्छा, हेमोसियानिन होता है जो कि कॉकरोच में पाया जाता है। साइटोक्रोम होता है जो कि प्लांट के लीफ में मतलब प्लांट के लीफ में पाया जाता है, जो कि उसको रेस्पिरेशन के दौरान, आपने नाम सुना होगा कि फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम B6 है। फोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन का एमिशन वगैरह होता है। इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ अर्थवॉर्म में नहीं होता, ठीक है ना? पोरीफायरिन रिंग प्लांट्स में भी होता है। वी हैव फर्स्ट वन इज HB। इट मींस HB का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन।
हाँ हेमोग्लोबिन। तो आपको पूरा ये फुल फॉर्म लिखना है हेमोग्लोबिन, शॉर्ट में नहीं लिखना है। इनके पास जो मेटल होगा वो क्या होगा, आयरन होगा। इनका कलर क्या देगा, रेड देगा। हियर वी हैव क्रोमो ना, क्रोमो मींस कलर, क्रोमो मींस कलर, ऐसा प्रोटीन व्हिच गिव्स कलर, डिफरेंट कलर having different metallic ion, they are known as chromoprotein. In this we have prosthetic group as metal plus porphyrin ring. समझ में आ रहा है क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. next we have cytochrome. In cytochrome we have iron as a metal and it gives the color of red. Clear है? Next we have hemocyanin. It has copper, it gives blue color. Clear है? Yes, sir. जल्दी से लिखो। नेक्स्ट वी हैव लिखना बाद में। नेक्स्ट वी हैव लिपोप्रोटीन एंड इट हैज प्रोस्थेटिक ग्रुप एज लिपिड्स। बेसिकली इट हैज कंस्टिट्यूएंट, इट इज द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपने पढ़ा होगा कि जब सेल मेम्ब्रेन आप लोग कहीं जब पढ़े थे तो वहां पर क्या होता है, अच्छा कहीं पढ़े नहीं तो मैंने आपको पढ़ाया, Gram-negative bacteria. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या क्या लिपिड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और क्या होता है, प्रोटीन। एंड प्रोटीन होता है, एलपीसी, लिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो डिफरेंट सेल पे उस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का परसेंटेज भी अलग अलग होता है एलपीसी का। हियर इट इज नॉट प्राइम मिनिस्टर, हियर इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या? हाँ सर। जल्दी से लिखो आप लोग। पीएम और सीएम बोलो यार, समझा करो, ठीक है ना? खैर कोई नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं, लेकिन हो गया क्या? हाँ सर। सबका हो गया? कोई यहाँ पे पीएम का मीन्स प्राइम मिनिस्टर नहीं लिखना है, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन, और वी कैन से सेल मेम्ब्रेन। सबका हो गया क्या? हाँ सर, हो गया। नेक्स्ट वी हैव फॉस्फोप्रोटीन। हियर वी हैव प्रोस्थेटिक ग्रुप एज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला कौन मुझे बताएगा बिना देखे? H3PO4. H3PO4, ठीक है। दिस फॉस्फोप्रोटीन इज प्रेजेंट इन कैजीन। कैजीन इज कैजीनोजन, जो कि एंजाइम है मिल्क में, ठीक है। इट इज अ मिल्क प्रोटीन एंड इट इज अ एंजाइम। नेक्स्ट वी हैव लेसिथोप्रोटीन। इट हैज ऑब्वियसली प्रोस्थेटिक ग्रुप एज लेसिथिन, जो कि फाइब्रिनोजन में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। फाइब्रिनोजन इज अ एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मेटलोप्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप इज मेटल। हम लोगों ने पिछले प्रीवियस क्लास में जब इनिशियल के फर्स्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है कि वे हैव डिफरेंट मेटल्स विल एक्ट एज अ कोफैक्टर। समझा कि नहीं? तो एंजाइम्स पढ़ा विद था हमने। पढ़ाया मैंने, याद है क्या? इनिशियल के फर्स्ट 2 लेक्चर मैंने पढ़ाया आपको। तो कोफैक्टर का याद नहीं है। इट विल एक्ट एज अ कोफैक्टर में अपना फर्स्ट 2 लेक्चर देखो, आपको मिलेगा फर्स्ट और आई थिंक सेकंड लेक्चर में। खैर कोई नहीं, अगर नहीं आपको याद नहीं है तो हम लोग फिर से इसको पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कोफैक्टर एक बहुत हेल्पफुल है एंजाइम के लिए। सो वी हैव मेटलोप्रोटीन, इट हैज प्रोस्थेटिक ग्रुप एज मेटल्स। तो डिफरेंट एंजाइम्स में डिफरेंट मेटल प्रोटीन्स में डिफरेंट मेटल्स होंगे और वो डिफरेंट एंजाइम के लिए काम करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो एंजाइम विथ इट्स कोफैक्टर दैट आर नोन एज मेटलोप्रोटीन। समझा क्या? मेटलोप्रोटीन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है सबको? क्लियर हाँ है? सर। जल्दी लिखो।
अच्छा, एक सवाल मैं आप लोग से आपसे पूछूं कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन एंड एंजाइम्स exhibit which types of structure, primary, secondary, tertiary और quaternary? याद है क्या आप लोगों को? रिपीट कर सकते हो? Majority of proteins and enzymes, since we are mentioning different way, प्रोटीन, क्योंकि एक तो पूरा प्रोटीन एक दुनिया समझ लो, उसके अंदर कुछ प्रोटीन ऐसा है जो कि एंजाइम की तरह बिहेव करता है, एंजाइम के तौर पर काम करता है. तो आई एम सेइंग दैट द मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स in the protoplasm exhibit which types of structure, primary, secondary, tertiary, quaternary? चार types of protein. Tertiary. बेटा देख ले. tertiary, Mostly it's a tertiary. And which is absolutely necessary for the biological process. क्या आपने नोट्स देख लिया क्या? नहीं सर, मिनट लिख रहा हूँ. नहीं सर, अच्छी बात है, देखना भी मत. सबका हो गया क्या? नहीं सर, Next we have glycoprotein. Next we have glycoprotein. Glycoprotein are those protein which has prosthetic group as carbohydrate, लेकिन इसका परसेंटेज काफी कम होता है, which is less than 4%. Less than 4% कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा ग्लाइकोप्रोटीन में. समझ रहे हो क्या? इतना आप लोगों ने लिख लिया? हाँ सर. हो गया सर. सबका हो गया? हाँ सर हो गया. ये समर्थ की आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है. समर्थ, आर यू इन द क्लास? बेटा क्लास में बोलते हैं, क्लास में एक्टिव रहा करो. इट विल बेनिफिट यू, नॉट मी. मैं तो बोलता रहूंगा, मेरा काम बोलना है. नेक्स्ट वी हैव glycoprotein. In glycoprotein the prosthetic group is carbohydrate. समझ में आ रहा है क्या? इसमें खास बात क्या है कि आप अपने पास दूसरा भी होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट 4% से ज्यादा होता है. इट हैज लेस देन 4% कार्बोहाइड्रेट. वी हैव एग्जांपल म्यूसिन, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है. म्यूसिन जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है. एंड सलाइवा secreted from salivary glands. Next we have alpha, beta and gamma globulin of blood. क्लियर है क्या? बोलो. ग्लाइकोप्रोटीन का काम क्या होता है? दे आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस. इनका काम क्या होता है? which are helpful in सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर. वैसे यहाँ पर है नहीं, आप लोग 12th में भी नहीं है, लेकिन वो समझना जरूरी है. एज वी नो इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल ओवम एंड ह्यूमन का ओवम विल फर्टिलाइज विथ ओनली विथ ह्यूमन स्पर्म. इतना आप लोगों को पता है क्या? नॉट विद अदर एनिमल्स. ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा? तो फिर क्रोमोसोम डिफरेंस भी आ जाएगा. अच्छा, तो उससे क्रोमोसोम डिफरेंस से क्या क्या फर्क पड़ता है? क्रोमोसोम बढ़ जाएगा. सर बाकी सब ऑर्गेनिजम्स वो कंडीशन में मतलब उनके स्पर्म सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ये कोई स्टैटिक एक्सप्लेनेशन नहीं है. बेसिकली क्या होता है? फॉर एग्जांपल दिस इज द ओवम. समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर. एंड हियर वी हैव इट इज द स्पर्म. दोनों के सरफेस में कुछ ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, दैट वी कॉल एज जीपी, ग्लाइकोप्रोटीन. ग्लाइकोप्रोटीन यही एक चीज, ऐसा चीज होता है, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन का स्पर्म is attracted towards the human ovum by releasing some kind of chemicals. ये तो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन बाय द वे उसके पास छोड़ देने के बाद क्या ये फर्टिलाइज करेगा कि नहीं करेगा? इसके लिए उनके सरफेस में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स. दे आर हेल्पफुल इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन. इट मींस दे हैव सम इंफॉर्मेशन दैट कि उनके पास भी सेम इसके सरफेस में भी सेम वाला ग्लाइकोप्रोटीन है इसके सरफेस, क्योंकि दोनों के दोनों ह्यूमन से बिलोंग करते हैं.
अब अगर किसी और एनिमल्स की बात करूं, उनके सरफेस में कोई और ग्लाइकोप्रोटीन होगा? यस और नो? Yes, So these sir. are the specific points where the cell to cell recognition occurs, and thus how human egg is only fertilized with human sperm, not with other animals. समझ में आया या नहीं? आया सर। पक्का? समझा। Next we have mucoprotein. It has prosthetic group as carbohydrate, same as the above one, but इसमें फर्क क्या है कि they have more than 4% carbohydrate. For example, we have osteomucoprotein of bones, जो कि bones को बनाने में help करता है। समझा क्या? ओके सर। Osteo is used for bone cells, so we call it as osteomucoprotein of bones. They are helpful in formation of bones. समझ में आया कि नहीं? समझा सर। बेटा मैं जैसे बोल रहा हूं इसे सब आपको याद होना चाहिए। कोई भी ड्रॉप का ख्याल नहीं करना। ड्रॉप का ख्याल करो तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। अपेयरिंग में निकालना बहुत आसान होता है। समझ रहे हो क्या? मच मोर इजी एज कंपेयर टू द ड्रॉपर्स। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि साथ में आप लोग स्कूलिंग भी कर रहे हो, साथ में नीट को भी लेके चल रहे हो। इट इज मोर मच मोर इजी देन द ड्रॉपर्स। ये ध्यान रखना। जितना मेहनत करना पड़े कर लो, अभी निकाल लो, फिर आगे मजे करोगे। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ना नहीं पड़ेगा, आगे भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लाइफ एक अच्छी सी हो जाएगी ना, एक स्टैंडर्ड लाइफ हो जाएगा। वैसे अब भी स्टैंडर्ड है, लेकिन जब एक टैग लगता है ना डॉक्टर की, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग। समझ रहे हो क्या आप लोग? हाँ सर। सबके सब डेडिकेटेड हो ना अच्छी तरीके से। Yes, sir. या फिर किसी और को कुछ और प्लान है? नहीं सर। हाँ, तो फुली डेडिकेटेड हो। जब एक बार टैग लग जाएगा डॉक्टर सबके साथ, मैं इतने बच्चे में सबका नाम कैसे ले लूं? अच्छा, कभी नाम ले लूंगा सबका डॉक्टर लगा के। इट विल फील डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स। it will gives you a lot of energy. It will boost up you. Should I proceed? 1 minute. Next we have derived protein. डन सर। डिराइव्ड प्रोटीन का मतलब क्या है? किसी ये नॉर्मल प्रोटीन से ये डिराइव्ड होगा। सबका हो गया? एग्जांपल लिख रहा हूँ लास्ट। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। लेकिन जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। समझ रहे हो क्या आप लोग? नेक्स्ट वी हैव डिराइव्ड प्रोटीन. Derived protein are those protein which are derived from different protein. For example, if we denature the protein, it will form another structure. If we digest the protein, it will proceed step by step, different compounds, different protein. For example, we have primary protein. तो प्राइमरी वो वाला प्राइमरी प्रोटीन नहीं है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ध्यान रखना। ये डिराइव्ड्स क्या है? जो छोटे छोटे पार्ट्स में ये टूटेंगे। तो प्राइमरी प्रोटीन आर दोज प्रोटीन which are formed by denaturation of any protein. For example, fibrin. Fibrin is found from fibrin is formed. It forms the fibrinogen. फाइब्रिन से क्या बनेगा? फाइब्रिनोजन बनेगा। और फाइब्रिनोजन क्या होता है इसे हम लोग पीछे पढ़ रखे हैं। बोलो यार। नेक्स्ट वी हैव मियोसिन. मियोसिन किससे होगा? मायोसिन से। क्या होता है अपने पास? मायोसिन। इससे क्या बनेगा अपने पास? मियोसिन बनेगा। समझा क्या? हाँ सर। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी प्रोटीन. दे आर फॉर्म्ड बाय डाइजेशन. फॉर एग्जांपल, वी ड्रिंक मिल्क, तो उसमें भी प्रोटीन होता है। बेसिकली दे ब्रेक डाउन इनटू देयर सिंपलर यूनिट्स
protein will break down into proteases. Next step it is peptone, next it is polypeptides, then next it is peptides, then finally they are the basic unit, that is the amino acids. And as we know, proteins are made up of amino acids. समझ में आया कि नहीं? And these amino acids are depending क्या करेगा कि ये अपने लिए essential है या non essential है, समझा क्या? हाँ उसके बाद ये अपने आप सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको अपना बॉडी को बनाने में मदद करेगा, जिसको जैसा बनाना है, जिसको हेल्दी बनाना है, लंबा बनाना है, जिसको जो बनाना है, ठीक है ना? डिपेंड करेगा, बॉडी इसको डिजाइन करेगा, और बॉडी नहीं, बॉडी के सेल्स डिजाइन करेंगे, सेल के अंदर उसका जीन डिटरमाइन करेगा कि इसको लंबा बनाना है, इसको टॉलर बनाना है, ड्वार्फ बनाना है, फेयर बनाना है, जो भी हो। क्लियर है? कोई डाउट है? लिख लिया आप लोग? सर वो अच्छा था। बेटा टेक्निकल सबसे प्रॉब्लम होता रहता है। सबने लिख लिया क्या? ब्लैक वाले में अच्छे से दिख रहा था, मस्त। हाँ सर ब्लैक वाला हाँ अच्छा सर, वो था। बेटर था। चलो कोई नहीं, पर मुझे दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। किसमें था? ब्लैक में था क्या वो? हाँ ब्लैक था। और सर व्हाइट से लिखिए ना, फिर बेटर होगा। बेटा व्हाइट में फिर व्हाइट भी यूज नहीं कर सकते ना? ये आप लोग को सही दिख रहा है? हाँ सर सर। अच्छा हाँ है। सर। मेरे को तो सर दिख नहीं रहा रेड मोबाइल, मुझे तो नहीं दिख रहा है। सर आप व्हाइट से लिखिए ना फिर अगर। व्हाइट या रेड से। हाँ सर, रेड से बहुत क्लियर दिख रहा है। अच्छा कोई नहीं, फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको इसी में जिसमें था उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें आप लोग को पहले वाले में क्लियरली दिखाई दे रहा था क्या? ये सही है? वो ज्यादा ब्राइट दिखता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो ब्लैक पे रखिए। ये सही है? हाँ ये ठीक है, ये रहने दो। रितिका सही सही है क्या ये? हाँ सर ठीक है। इतना आप लोग ने लिख लिया क्या? हाँ सर। क्योंकि फिर उसमें ब्लैक में मुझे यहाँ से दिखता नहीं ना, मुझे लिखना भी तो पड़ेगा। सो नेक्स्ट वी हैव, इसको चेंज करना। अच्छा कोई नहीं, जो ये किया हुआ है इसमें से देख रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या मालूम है आप लोगों को? एंजाइम्स क्या होता है? दे आर द basically enzymes are the product of proteins. Enzymes are formed from proteins. समझ में आ रहा है क्या? So we can say all enzymes are protein except one, उसको हम लोग पढ़ेंगे, and all proteins are not enzymes. हाँ बेटा? सर आपने बोला ना राइबोजाइम। हाँ, राइबोसोम is a protein, not a protein. It is a enzyme which is formed from nucleic acid. Clear है? And these enzymes are made up of amino acids, means protein. Clear है? तो first time जो the first person who isolated and discovered the enzyme is the Buchner, or we can say Buchner या Buchner, जो बोलना है आपको बोलो. He is a scientist. और उस एंजाइम का नाम है जाइमेज, और जाइमेज का उन्होंने एक्सट्रैक्शन आइसोलेशन कहां से किया था? फ्रॉम द ईस्ट से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान इस एंजाइम को सेग्रेट किया था, मतलब कि उसको आइसोलेट किया था, ठीक है? बट द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय कुहने। समझा क्या? द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय कुहने, KUHNE। बट आइसोलेशन, फर्स्ट आइसोलेशन अलग चीज है, बट फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द एंजाइम दैट इज यूरेज बाय JB समर। ये विंटर वाला समर नहीं है, समर साइंटिस्ट का नाम है। दैट इज द JB समर वाज द फर्स्ट पर्सन, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्यूरिफाइड एंड क्रिस्टलाइज्ड द एंजाइम दैट इज द दैट एंजाइम इज नेम्ड एज यूरेज। क्लियर है? हाँ सर। हाँ, अब एंजाइम को थोड़ा डिफाइन करते हैं। एंजाइम होता क्या है?
बेसिकली आप लोगों ने कैटलिस्ट का नाम सुना होगा, सुना है क्या? हाँ, Catalysts are those substance which increases the rate of reaction. मीन्स अगर पहले कोई रिएक्शन अगर 10 मिनट पे हो रहा था, अब वो 2 मिनट पे होगा विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में क्या होता है, मेटल्स वगैरह भी यूज होते हैं। सो एंजाइम्स यही होता है, जो भी कोई रिएक्शन होगा, जो भी कोई वट एवर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकर इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, with the help of enzyme they will do it in very fast, very in short interval of time. Clear है? The proteins with catalytic power is called as enzyme. बोलो यार, proteins with catalytic power is known as enzyme. Clear है? It hastens or it increases the rate of reaction by decreasing the activation energy. Activation energy क्या होता है, मुझे बताएगा? minimum energy required. हाँ, Process मिनिमम to एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द प्रोडक्ट और टू हैपन द रिएक्शन। समझा क्या? अगर किसी फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रिएक्शन है जिनके पास 100 जूल एनर्जी, उसका एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर वहीं पे मैं एंजाइम लगा दूं तो ये हो सके 50 जूल में हो जाए, इसको डिक्रीज कर देगा और कम टाइम में हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? हाँ, क्लियर है? हाँ सर। आप लोगों की बातों में दम नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या आप लोगों को? समझा। मतलब बातों में बोल में एनर्जी होनी चाहिए ना, हाँ वाक्य समझ में आ रहा है। जल्दी लिख लो फिर आप लोग। तो फ्रॉम ईस्ट लिखा ना राइट में? हाँ हाँ, ईस्ट ईस्ट। कुछ टाइम के लिए आप या परमानेंटली आप सेंटेंस बन जाओ, ठीक है? आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर कोई चीज आपको मालूम चला कि कुछ इस तरीके से समथिंग इज हैपनिंग, इन द अब्सेंस ऑफ दिस इट टेक लार्ज टाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सब्सटेंस इट व्हाट वी कैन से इट टेक लेस टाइम। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, तो हुआ क्या कि डिस्कवरी क्या होता है कि इसके प्रेजेंस में ये चीज होती है, लेकिन उसका एक्सट्रैक्शन करना तो हो सके जो वो उसको मालूम चल गया कोई ये एंजाइम है, कोई ये सब्सटेंस है, उसने नाम नहीं दिया था, ये ध्यान रहे। तो जो टर्म दिया था टर्म तो किसी और ने दिया, जैसे अपने पास मेंडल है ना, उसको पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ बताया था कि कुछ इस तरीके से होता है और यही सही है। समझ आ रहा है क्या? तो उसको हम लोग आज पढ़ते हैं ना, जीन या डीएनए और आरएनए, कि इस तरीके से कॉपी होता है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट उसका ट्रेड्स होता है। देखो, कोई काम करना ये डिफरेंट थिंग होती है, समझ रहे हो क्या? उसका डिटेल्स देना जरूरी नहीं कि वो आप ही दे सकते हो। आपने मुझे कोई इन्फॉर्मेशन दिया कि सर आपको फला जगह पर इस तरह के करने से आपको ये मिलेगा, लेकिन आपको पता नहीं है वो काम मैंने किया तो आई हैव गॉट दैट रिजल्ट। समझा क्या कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। क्या सेल नाम उसने दिया था क्या? उन्होंने तो सम टाइप ऑफ कंपार्टमेंट ही सेड। बाद में साइंटिस्ट आया, उसका नाम दिया सेल। जो वो डिस्कवर्ड किया था वो डेड सेल था, बाद में जो साइंटिस्ट है उसने उसको लिविंग सेल डिस्कवर किया, लेकिन वो किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही। जैसे वी आर द ह्यूमन बींग्स, बच्चे जन्म लेता है तो पैदा करने वाला कोई और होता है ना, बट जरूरी नहीं कि इसका नेमिंग और इसका परवरिश का पेरेंट्स ही कर सके। समझा कि नहीं? आप बताओ। समझा सर। और जो मार्केट में इसका मतलब कि फिजिकली इसका एग्जिस्टेंस जो हुआ, तो जो ये साइंटिस्ट था इसके लेवल में नहीं था, या हो सके ये नहीं कर पाया हो,
due to lacking some what we can say instrument or whatever the equipments they need. फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था कि जब सेल डिस्कवर कर हो गया तो न्यूक्लियस को भी डिस्कवर कर लेना चाहिए था, लेकिन एट द टाइम वी हैव नो एनी काइंड ऑफ माइक्रोस्कोप। तो बाद में माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, इन्वेंट हुआ, फिर उसको डिजाइन किया गया, बाद में देखकर उसका न्यूक्लियस को भी डिस्कवर कर लिया गया, फिर बाद में जीन्स के बारे में मालूम चल गया। सिमिलरली यहाँ पर है कि मालूम चल रहा है कि इस सब्सटेंस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, अगर ये सब्सटेंस में हटा लूं, कोई ये कंपार्टमेंट हटा लूं, तो ये रिएक्शन काफी टाइम लग रहा है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। लेकिन वो कौन सा एंजाइम किया था? ये यूरियस किया था, नॉट द जाइमेज। क्योंकि उसका अगर कोई एंजाइम आप डिस्कवर कर रहे हो तो वो उसका मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए ना, क्योंकि हाँ फला ये दिस इज द एंजाइम। क्रिस्टलाइज एंड प्यूरिफाइड का मतलब उसका एक्सट्रैक्शन। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। कोई डाउट है अभी? तो डिस्कवर कोई और कर सकता है, लेकिन क्योंकि पहले ही वाज द फर्स्ट वन टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट, बस उसने एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाया, मार्केट में अवेलेबल नहीं करवा पाया, लेकिन वो जो कहा था, जो उसने बताया वो सही है। तो डिस्कवरी द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू दैट पर्सन हु वाज द फर्स्ट टू गेट दैट दोज इंफॉर्मेशन। समझा कि नहीं? हाँ सर समझा। ये आप लोगों ने लिख लिया क्या इसको? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्योंकि इन जनरल कैटलिस्ट क्या होता है, ये कॉमन टर्म है, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी एंजाइम के लिए यूज कर सकते हैं जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा, मतलब कि वो एक तरह का हेल्पर के तौर पर काम करेगा। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट सिंस इट एक्ट ऑन द बायोलॉजिकल सिस्टम। समझ में आ रहा है क्या? एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कैटलिस्ट सिंस दे आर फ्रॉम लिविंग। समझ में आ रहा है क्या? And the molecules on which the enzyme acts, that is known as substrate, or basically in simple term we call as reactant. समझा क्या? हाँ सर। And the converted molecule is called as product. For example, here it is a substrate, enzyme has came here and the enzyme have performed their own function, जो उसको काम करना है काम किया। जब काम करने के बाद क्या होगा, जो ये सब्सटेंस बनेगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे, जो सब्सटेंस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है क्या बोलेंगे उसको हम लोग? सबस्ट्रेट बोलेंगे, और वी कैन से रिएक्टेंट। क्लियर है? यस और नो? हाँ सर। पक्का? नेक्स्ट वी हैव ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट व्हिच बिहेव्स एज एंजाइम। उसका आप एग्जांपल अपने पास राइबोजाइम, जिनके बारे में नीट वालों ने आपसे पूछा था कि न्यूक्लिक एसिड, क्या पूछा था? न्यूक्लिक एसिड के बारे में कि ये कौन ऐसा एंजाइम है जो कि एमिनो एसिड से बनानी है, और नीट के 16 में पूछा गया था। समझा सर। हेलो, यस सर, आ रही आवाज? लाइट हैज गॉन। आवाज आ रही है सर आपकी। लाइट हैज गॉन। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मैंने सुना ना क्या बोला आपने? मैंने क्या बोला? हाँ सर। लाइट हैज गॉन। हाँ, सप्लाई हैज बीन कट ऑफ। चलो कोई नहीं, जब तक हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं ना। शुड आई? हेलो,
Yes, sir. कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। सर आप लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे मेरे को? बेटा हो जाएगा। हाँ सर, थैंक यू सर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोटीन ऑल एमिनो एसिड्स आर, ऑप्शन दो क्या? इन प्रोटीन्स ऑल एमिनो एसिड्स आर, ऑप्शन देना पड़ेगा। हाँ सर, एक बार दो ना। अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड, गामा एमिनो एसिड, डेल्टा अमीनो एसिड। बताओ। सर अल्फा। एनीवन? यस सर, अल्फा। एक क्लास में कौन नहीं है? Who is absent in the class? सर आपका एक डिवाइस नहीं है। अच्छा मेरा ही नहीं है, सॉरी। नेक्स्ट वी हैव, सबको आता है क्या? इन प्रोटीन ऑल एमिनो एसिड्स आर अल्फा एमिनो एसिड, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड और एसेंशियल एमिनो एसिड, ये आपको पूरा का पूरा नाम दिमाग में याद होना चाहिए। आप लोग एक बार देखोगे, बार दो बार देखोगे, बार देखोगे, देखने की चीजें देखते रहना, तो आपको हमेशा के लिए ना याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से इन टोटल वी हैव 20 एमिनो एसिड्स, उनमें से कोई भी 3 नॉन एसेंशियल दे देगा और फोर्थ वन इज द एसेंशियल, पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल एमिनो एसिड। तो आपको इस तरीके से पहचानना पड़ेगा। सिमिलर टू दैट वी हैव अ क्वेश्चन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। एग्जांपल ऑप्शन आपके पास ट्रिप्टोफैन, वैलिन, टायरोसिन, लाइसिन। सर रिपीट करेंगे? लाइसिन है नॉन एसेंशियल। ट्रिप्टोफैन, वैलिन, टायरोसिन। एक मिनट। सर आर्यन? हमें क्या फाइंड आउट करना है इनमें? हाँ सर। नॉन एसेंशियल। We have 2 types of amino acid, टायरोसिन सर। सर डी सर, टायरोसिन। और तनुश्री, सुजाल? हाँ सर, टायरोसिन ही होगा। टायरोसिन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचर ऑफ लाइसिन इज बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल और नन? नेचर ऑफ लाइसिन बेसिक। इज बेसिक, एसिडिक, न्यूट्रल, नन? बेसिक। सबके लिए बेसिक है, किसी के लिए एसिडिक भी है, न्यूट्रल भी है? तीनों होता है हाँ बेटा? सर, तीनों टाइप्स के होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। नहीं, इनमें से कौन सा है? लाइसिन कौन सा है? आप एक मिनट, रितिका, लाइसिन बेसिक है ना सर? सबके लिए क्लियर है क्या ये? सबके लिए क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। मोस्ट अबंडेंट फाइब्रस या प्रोटीन। ग्लोबुलर आपने नहीं मेंशन किया। मेंशन नहीं किया मैंने। रूबिस्को। रूबिस्को। रूबिस्को है सर। हाँ सर। इन द एनिमल वर्ल्ड? कोलेजन। इन द वर्ल्ड सर। हाँ सर। कोलेजन। इन द यूनिवर्स? कोलेजन। इन द यूनिवर्स? रूबिस्को। 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 इन द प्लांट वर्ल्ड? रूबिस्को। 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 मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन? कोलेजन। 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 Protein in which the amino acids are in positional information is indicated by which types of structure? Secondary, primary, tertiary, quaternary? प्राइमरी। पक्का? हाँ। सबका क्लियर है क्या ये? बोलो यार। क्लियर है सर। एक मिनट।
Basically, almost all enzymes are protein, but there is some enzyme which are non-proteinous. It means they are nucleic acid. We have example is ribozyme, which is a nucleic acid, and it has been asked in NEET 16 of second phase. समझा क्या? नीट के, क्योंकि इसमें 16 में 2 बार नीट होता है, नीट 1 नीट 2, तो नीट 2 में पूछा गया था. क्लियर है? तो हम लोग बात कर रहे थे सबस्ट्रेट के बारे में. सबस्ट्रेट बेचारा क्या होता है, इसको हम लोग बेचारा बोल रहे हैं. सबस्ट्रेट, हियर वी हैव सबस्ट्रेट एंड वी हैव प्रोडक्ट, एंड वी हैव सबस्ट्रेट एंड एंजाइम. प्रोडक्ट तो बाद में बनेगा, पहले आएगा फर्स्ट टर्म इज द सबस्ट्रेट, एंड इन साइज सबस्ट्रेट इज स्मॉलर. In size, substrate is smaller and enzyme is larger. That's why I have made a figure. आपको दिख रहा है? हेलो, हाँ सर. दिख रहा है क्या आपको? तो साइज ऑफ एंजाइम इज स्मॉलर. यस और नो? Yes sir. साइज ऑफ एंजाइम इज लार्जर बेटा, दिख रहा है आपको डायग्राम में. एंड सबस्ट्रेट का साइज छोटा होता है. एंड सबस्ट्रेट, आपको एक जो मैं अभी स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, ये क्वेश्चन पूछा गया है और इट इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन. ठीक है? सबस्ट्रेट फिट्स ऑन एंजाइम और एंजाइम फिट्स ऑन सबस्ट्रेट. बताओगे? हेलो, enzyme fits क्या बोल रहे हो बेटा? enzyme fits on substrate. नहीं बेटा, सबस्ट्रेट फिट्स ऑन एंजाइम. On enzyme. ध्यान रहेगा. जो मैं आपको अभी कलर चेंज किया इसका, बेसिकली इट इज द सबस्ट्रेट एंड इट हैज, दिस इज द एंजाइम. हियर द सबस्ट्रेट फिट्स ऑन एंजाइम, and we know the size of enzyme is larger as compared to Substrate. सबस्ट्रेट. क्लियर है क्या? तो ये क्या बनाएगा? कॉम्प्लेक्स बनाता है. क्या बनाता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है. समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर. जल्दी से आप लोग लिख लो. आपको जो ये कुछ पॉकेट टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर. इसको बोलते हैं क्या? सिरेविसिस बोलते हैं. और पॉकेट इन विच द सबस्ट्रेट फिट्स, it has different binding sites in which the substrate will bind and it will form a complex, and it will have some kind of changes, structural changes. चेंज होने के बाद क्या होगा? ये सबस्ट्रेट बाद में एज अ प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाएगा. समझा कि नहीं? समझा क्या? हाँ हेलो, सर, क्लियर है. आगे बढ़ूं? तो एक मिनट. नहीं.
हो गया? एनिमल लेफ्ट? 1 minute sir. हो गया सर। हो गया क्या? तो वो स्ट्रक्चर बना रहे हो 1 मिनट। It is just like a key lock fashion, and in the complex, it has a structural changes. इसमें एंजाइम को बाइंड करने में कंपटीशन भी हो सकता है। एंजाइम को बाइंड करने के लिए वी हैव इनहिबिटर्स, किसको इट विल इनहिबिट टू गेट बाइंड। हो गया सर। इनको फंक्शन आप समझ रहे हो आप लोग ना? We have different kinds of inhibitors which will inhibit the enzyme to bind to the substrate to form the product. We have competitors. समझ रहे हो ना? Yes sir. Competitor, inhibitor, these are the kind of things which prevent the enzyme to get bind with the substrate. So next we have substrate fits on enzyme. Substrate fits on enzyme. Enzymes are in bigger size and substrate are on smaller size. समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? Yes sir. ये सवाल पूछा भी गया है, साइज ऑफ एंजाइम इज लार्जर देन द सबस्ट्रेट। क्लियर है? एंड द एंजाइम हैज सीरोविसेस और we call it as pocket, and these are the active site where the substrate will fit. क्लियर है? अगर ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट में खास डिफरेंस देखें, the main difference is that the inorganic catalyst works efficient or at high temperature. समझ रहे हो क्या? High temperature, high pressure, it will work efficiently. For example, we have different kinds of microbes. For example, we have bacteria, Thermophilus, Acidophilus. They are present on hot spring, thermal spring, or too much high acidic condition. They survive since they have that kind of protein machinery that it will exist at that kind of harsh condition. समझे क्या? Thermophilus, Acidophilus, these are the kind of bacteria. But enzymes get damaged at high temperature. It is in general 40 degrees Celsius. Clear है? But enzyme work efficiently on a range of 25 around. 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये efficiently काम करेगा. समझा कि नहीं? जल्दी से लिख लो उसको आप. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? किसी को कोई डाउट है? नहीं सर. It is एंजाइम लास्ट 20 पार्ट to है ना ये चैप्टर का? 35. हाँ ये लास्ट ही चल रहा है. वैसे हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी शुरू कर चुके हैं. जो एंजाइम्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्लांट फिजियोलॉजी में, क्योंकि हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे थे तो प्रोटीन का यूज एंजाइम में होता है, तो डायरेक्टली आई हैव कन्वर्टेड टू ट्रांसफॉर्म टू फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स टू प्लांट फिजियोलॉजी, दैट इज इन रिस्पिरेशन द लास्ट पॉइंट्स. समझ रहे हो क्या? आपको रिस्पिरेशन के लास्ट पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा सब चीज. वैसे बायोमोलिक्यूल्स में भी है. बायोमोलिक्यूल्स में इसलिए है ताकि आप लोग प्लांट फिजियोलॉजी में इसको इजीली पढ़ सको. समझा क्या? ये सब ETS में है क्या? ETS? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अच्छा वो ETS. ETS में वहां पे आपको आएगा, जैसे साइटोक्रोम वहां पर आएगा, पोरिफायरिन रिंग आएगा, और जो रिस्पिरेशन इन प्लांट्स है, बोथ फिनोमेना इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिस्पिरेशन कुछ बेसिक फंडा सेम होता है, बट वो प्लांट होते हैं और ये एनिमल्स होते हैं. क्लियर है? तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं. और ETS में भी इसका बहुत सारा यूज होता है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है. समझा सर. हो गया विजय प्रोस, आगे बढ़ो.
नहीं सर, अभी चालू किया। बेटा थोड़ा लिखने वाला काम फास्ट क्या करो। सर हाँ बेटा। वैसे तो बहुत लोग बहुत जगह में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले टेम्परेचर में लोग रहते हैं आराम से, तो फिर कैसे? अच्छा कैसे? मैंने कहा कि इन जनरल, समझ रहे हो ना? जो मैंने एक काम होता है एंजाइम वर्किंग एफिशिएंटली, but at high temperature it will not work efficiently. Some persons are living on the higher temperature, they are adapted to that kind of condition. समझ रहे हो क्या? जरूरी नहीं कि टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ध्यान रहे, we are the human beings, we maintain our constant temperature. समझ रहे हो क्या? We are the, अच्छा आप लोग पढ़े नहीं, आप लोग इकोलॉजी में पढ़ोगे कि we have conformers होते हैं, कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, समझ रहे हो ना? कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म दे चेंजेस देयर इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, बट वी हैव इन द यूनिवर्स देयर आर सम ऑर्गेनिज्म which maintain their constant body temperature, which maintain their homeostasis. For example, humans, we are the organism, we are the top class organism जो कि अपना इंटरनल बॉडी कंसंट्रेशन हमेशा मेंटेन रखते हैं। अगर टू मच हॉट एरियाज में रहते हैं, टू मच डेजर्ट एरियाज में रहते हैं, वी विल गेट स्वेटेड, पसीना बहुत आएगा। अगर कोल्ड पे है तो हम लोग व्हाट वी कॉल थ्रम्बिंग करेंगे, कांपेंगे, और वी कैन गेट क्लोथ्स। समझ रहे हो कि नहीं? हेलो, नहीं जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया क्या? फरहान बेटा क्लियर हो गया आपका? हाँ सर। हाँ। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये ध्यान रखना है आपको। दे आर प्रोटीन्स आर, एंजाइम्स आर द कोलाइडल सब्सटेंस that is very sensitive to pH and temperature. They are optimal temperature in which they function maximum is the 20 to 35 degree Celsius. Enzymes are of amino acid. They are synthesized on ribosome under the gene control. Clear है? Enzymes are tertiary and globular protein. We have exception here. Isoenzyme is the quaternary protein. Isoenzyme is a quaternary protein. In general क्या होता है? We have tertiary and globular protein. इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा होता है? कौन सा होता है? बताओ। रुबिस्को सर। इसको मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा? एक सवाल आपसे तुमने किया था ना कुछ देर पहले। हाँ तो सर आपने फिर रुबिस्को ही बोला। नहीं, वो तो आपका सवाल जवाब सही है। मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स इन द प्रोटोप्लाज्म एक्सिबिट व्हिच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर? टर्शरी। हाँ, वैसे मत मैं पूछ रहा हूं यहाँ पर कि एंजाइम्स आर द टर्शियरी एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, बट वी हैव सम एंजाइम दैट इज आइसोएंजाइम व्हिच इज द क्वाटरनरी प्रोटीन। 4 डिग्री मतलब क्या होता है? क्वाटरनरी होता है ना? हाँ सर, क्वाटरनरी। थोड़ा इंग्लिश आती है, इंग्लिश बोलते हैं, केमिस्ट्री आती है। नेक्स्ट वी हैव एंजाइम्स की खास बात क्या होता है? इनका अमाउंट, इसका रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट इज वेरी लेस, काफी कम अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है एंजाइम्स की। सबस्ट्रेट की जरूरत बहुत पड़ती है क्योंकि उसको प्रोडक्ट बनाना होता है। एंड हैविंग कैटालिटिक पावर रिप्रेजेंटेड बाय द मैकेलिस मेंटेन कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट है, मैकेलिस अलग साइंटिस्ट है, मेंटेन अलग साइंटिस्ट है, जो कि इसके कांस्टेंट से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और रिटन एज Km कांस्टेंट। मैकेलिस, मेंटेन कांस्टेंट और Km कांस्टेंट,
इसका टर्नओवर से भी इसका हम लोग एक्टिविटी को देखते हैं कि दिस अमाउंट पे या किसी पार्टिकुलर एंजाइम को यूज करने के बाद कि प्रोडक्ट का टर्नओवर कितना हो रहा है, कोई कम करते हैं कोई ज्यादा करते हैं। क्लियर है क्या? टर्नओवर का मतलब फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ एंजाइम ए, क्लियर है, मैंने इसका कोई अमाउंट लिया, कोई हमें सबस्ट्रेट था, इसे हमें प्रोडक्ट बनाना था, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स काफी कम बनाएगा। मान लो प्रोटीन बनना था, तो मान लो 100 ग्राम प्रोटीन बनाया मैंने इस एंजाइम ए को यूज किया, वहीं पर मैंने किसी एंजाइम बी को यूज किया, उसने क्या किया 100 ग्राम के बजाय 100 केजी प्रोटीन बनाया, तो टर्नओवर बी का ज्यादा होगा ना या ए का ज्यादा होगा? बी का। तो दिस इज द टर्नओवर कि प्रोडक्ट कितना बना रहा है। जैसे टर्नओवर में सेम चीजें जो हम लोग बिजनेस पे यूज करते हैं या फिर किसी फैक्ट्री पे यूज करते हैं कि या फिर किसी का इनकम पे कि आपका सालाना टर्नओवर कितना हो जाता है, 1 मिलियन 2 मिलियन और बिलियन, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट इस तरीके से हम लोग उसको बात करते हैं, समझा कि नहीं? समझा सर। जो फाइनली आउटपुट कितना हो रहा है दैट इज द टर्नओवर। इसको थोड़ा सा हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे, ध्यान रहे वी हैव एंटर्ड द चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द एंजाइम्स और किस तरीके से वो इफेक्ट होते हैं, हम लोग वहां तक आ चुके हैं। बायोमोलिकुलर का पार्ट जो पढ़ना था वो खत्म हो चुका है, थोड़ा सा कुछ पार्ट रह गया है जो कि हम लोग कंबाइंडली पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इस पॉइंट्स को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, जब वहां पर हमें पढ़ना और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों कि हम लोग ऑलरेडी वो सब चीज पढ़ चुके हैं, इसका बेसिक फंडा पढ़ चुके हैं, सिर्फ हमें उसका यूज देखना है। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। जल्दी लिखो। Km is the Michaelis Menten constant। ध्यान रहे पहले हम इसके बाद यहां पर लिखे हैं Michaelis Menten constant, उसी को हम लिखते हैं Km constant। और कैटालिटिक पावर को हम लोग टर्नओवर से भी रिप्रेजेंट करते हैं या Km कांस्टेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है क्या? तो वो आइसोएंजाइम के बाद क्या लिखा है? क्वाटरनरी प्रोटीन 4 डिग्री, आपको 4 डिग्री नहीं लिखना है, आपको टर्शियरी लिखना है पूरा फुल, और आपको क्वाटरनरी पूरा लिखना है। 4 डिग्री मींस क्वाटरनरी, 3 डिग्री मींस टर्शियरी। आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दैट यू डू नॉट हैव टू राइट इन शॉर्ट, बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये टर्शियरी के 3 डिग्री का मतलब क्या है। बेहतर है आप फुल फॉर्म पे लिखो। ए समझ में? हाँ बेटा बोलो। रिटेन्ड बाय नहीं बेटा, इट इज रिप्रेजेंटेड सर एक बार वो पूरा लाइन पढ़ दो ना। कैटालिटिक पावर जो हम लोग बात करते हैं कि इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कि कोई तो फंडा होगा जिसे मालूम चलेगा। तो कैटालिटिक पावर is represented by Michaelis MECHAELIS Michaelis maintain MENTEN maintain, नीचे कांस्टेंट है CONSTANT कांस्टेंट, और इन शॉर्ट हम लोग लिखते हैं इसको Km कांस्टेंट। Michaelis maintain कांस्टेंट को लिखते हैं Km कांस्टेंट। क्लियर है? एंड टर्नओवर, यहां से हम लोग इधर से इधर आए हैं, एंड टर्नओवर। क्लियर है? सर क्लियर है।
हो गया सर। शुड आई प्रोसीड? आगे बढ़ो। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ग्राफ की बात कर लेते हैं। और ग्राफ में वी हैव, दिस इज द, अच्छा आप लोग को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा सा मालूम है ना? हियर इट इज द वाई एक्सिस ना? एक्स एक्सेस। अच्छा तो मुझे आता है ना, मुझे थोड़ा सा आता है। दिस इज द वाई एक्सिस, क्लियर है? वाई एक्सिस विल रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी and x axis will represent the progression of substrate towards to product, or we can say progression of reaction on the basis of concept that is EA. EA को बोलते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। आप लोग लिख लोगे क्या? EA stands for एक्टिवेशन एनर्जी। समझा क्या? हेलो, हियर वी हैव सबस्ट्रेट, S for substrate। और होगा क्या कि इन जनरल आपको पहले व्हाइट वाला लाइन छोड़ दो, सिर्फ आप ऊपर वाला देखो, ठीक है ना? जब when we do not have enzyme, and this is the transition state in which it has to this substrate has to pass this, समझ रहे हो क्या? इतना एनर्जी देना पड़ेगा टू हैव द टू कंप्लीट द रिएक्शन। So this is the amount of energy that is required when we have no enzyme. समझ में आ रहा है क्या? And obviously it will take much time. So this is the activation energy without enzyme, means it is its value, इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2। इसका मतलब we can say activation energy 1 is less than greater than activation energy of 2। समझा क्या? एक तो कंसेप्ट मेरे पास ये वाला हो गया, समझ रहे हो क्या? नेक्स्ट वी हैव व्हेन वी यूज एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। क्या बोला मैंने? टू कन्वर्ट द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, the activation energy reduced, and in short interval of time the reaction has been completed or the substrate has been converted to product। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। तो we have this activation energy with enzyme and upper one is the activation energy without enzyme। तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा तो ज्यादा मुझे एनर्जी देना पड़ेगा क्या? सो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन एंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। बट इन केस ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी सेकंड मींस व्हाइट लाइन, दिस इज इट टेक लेस टाइम टू कंप्लीट द रिएक्शन एंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। क्लियर है? सो वी कैन से एंजाइम है, एंजाइम्स क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को स्लो करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, now we have this amount, so activation energy has been reduced by increasing rate of reaction। समझ में आया क्या? बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट, एक्चुअली खाली 4 मिनट ही बाकी है क्लास शुरू होने में, तो वो 2 मिनट आगे है उनका, इसलिए। क्या क्या वैसे मेरे 4 से क्लास भी है, तो एक काम करो सर ये वाला आप नेक्स्ट तो लेक्चर ये, करते हैं, हाँ सर, ये समझ नहीं पॉइंट रहा। आप लोग एक डायग्राम बना लो जल्दी से, डायग्राम जल्दी से बनाओ। सर खाली डायग्राम बनाना है। मैंने पूरा जो बोर्ड में लिखा हुआ है या छोड़ दो, फिर आप लोग एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और लिख लेना, ठीक है ना? समझ रहे हो क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग लिख लेना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके सर।
और जो पढ़ाया गया है सब आप लोग रिवाइज करोगे, ठीक है? हाँ सर, हो गया। और एनसीईआरटी भी पढ़ना है। That is enough for today, and we will continue next class. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. थैंक यू सर। Bye.